हेलो एवरीवन। सो सीईटी खत्म हो गई है, टाइम हो गया, रिजल्ट आ गया एंड एवरीबॉडी इज वरीड दैट अब एडमिशंस का क्या एंड व्हेन द कैप राउंड्स हैपन। आई कांट टेल यू, मुझे इतनी बार ये क्वेश्चन आया दैट सर कैप राउंड कब चालू होगा, रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा। डोंट वरी। सो a few things that I want to just explain you guys and let's just start the video. चलो, so guys let's start with this. So all the questions that I have gotten, बहुत सारे questions है because category students या फिर students को जो college ये मिल रही है वो मिल रही है, all these doubts will be solved today. Now, first I want to really tell you guys that we are conducting our first live offline seminar and that is going to be in Nagpur. So I took a toll on Insta and जहाँ पे students को सबसे ज्यादा चाहिए थे, it's going to be in this order: नागपुर, पुणे, मुंबई. So because Mumbai being my hometown, थोड़ा leniently ले रहा हूँ. Mumbai had the highest number of people wanting it. So पहले नागपुर में कर रहा हूँ and it's going to be on 8th, that is this Saturday. शाम को 4 से 6 all venue and all details will be sent to you over mail. You can just register for the session by using this QR. या तो QR स्कैन करो या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ. You can register it. I guarantee that this will be the best session that you have attended till now. If you have attended any other classes seminar, and I'll tell you why. First of all, I'm पूरा बताऊंगा that कैसे क्या करना है. ऑल कॉलेजेस, ऑल एग्जाम्स जो भी तुम दे रहे हो, कैट, इनमैट, स्नैप, ये सारी एग्जाम्स कैसे करनी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ स्पेशल टेस्ट फॉर ऑल द पीपल. I'll make the test for all of you and I will also show you how to solve the test. So all the people who are even taking next year's CET, this is your chance to understand how do I teach and why do my methods help my students so much. I hope you guys even know that even the 100% teller in CET 22 is a crack and student. So our tricks are really working because we have a lot of students now at JB and Sidnam going this year also. So I really suggest that you guys come there. And the third thing, obviously, because students always ask for it, so I'm going to have a lot of discounts on the course. It will go up to 50%. And the person who is the topper of the test gets even more discount on the course. So that's just something जो मैं अपने behalf पे कर रहा हूँ, nothing else. So again, as I said, you can just register by scanning this QR code or you can directly go to the link in bio. So a very easy process, बस एक Google फॉर्म भरना है. And we also have a WhatsApp group. वो WhatsApp group ज्वाइन करो, उसमें मैं सारी डिटेल्स दूंगा दैट कैसे क्या कब होगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा एक दो सेशंस भी वहां पे लूंगा मैं, दैट ऑन हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली सारे डाउट्स वहां पे क्लियर नहीं हो सकते. सो लेट्स स्टार्ट विद एपीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द कैप राउंड गोइंग टू स्टार्ट. देखो, अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. वी गाइस ऑलरेडी नो सीईटी दैट सीईटी सब कुछ प्रॉपरली टाइम पे तो बताती नहीं है. आई सजेस्ट, आई थिंक दैट इट विल स्टार्ट इन मिड अक्टूबर. 10 से 15 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है दैट चालू होगा, लाइक उसकी न्यूज आएगी. बट यू डोंट वांट टू स्टॉप फॉर दैट. नाउ अंडरस्टैंड, तुम्हें पता है तुम्हें कितने परसेंटाइल्स आ रहे हैं. यूज दिस टाइम. You already know that तुम्हें इतना परसेंट आ रहा है. You got a 95, you got a 93, you got a 92. I put the colleges into three categories only. Only three categories. One is JB. It's a class apart in CET. बाद में आता है सिडनम, वेलिंकर एंड पुम्बा. एंड फाइनली ऑल अदर. चलो इसमें सीओबी भी गिन लो बिकॉज ऑफ द कॉलेज फेम, नॉट द वर्क, बट द कॉलेज का फेम बहुत है. ओके. एंड फाइनली देयर इज द लास्ट वन, लास्ट कैटेगरी विच इज ऑल अदर कॉलेजेस. देखो, तुम ये नहीं बोल सकते दैट, लेट्स टेक दिस फॉर एग्जांपल. अगर मुझे फाइनेंस करना है और मैं मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट ले लूं, तो फाइनेंस वाले क्या सोचेंगे, अरे क्या फायदा ये सर्टिफिकेट करके, वेस्ट है. तुमने उसमें 6 महीने डाले, तुमने बहुत मेहनत की, बट इट इज गोइंग टू बी वेस्टेड फॉर यू. व्हाई? बिकॉज वो जो कंपनी तुम्हें वहां प्लेसमेंट देने आएगी, उसको उसका कुछ काम ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर तुम इसरो के साइंटिस्ट हो और कोई कंपनी आ रही है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, फॉर इंजीनियर्स आई एम सेइंग. तुम इसरो में, इसरो लेवल के तुम रॉकेट साइंस पढ़े हो, बट कोई कंपनी आ रही है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, टाटा आ गई या फिर मर्सिडीज आ गई, मैक्लारेन आ गई, लंबोर्गिनी आ गई. वो तुम्हें हायर करेंगे नहीं, लेकिन अरे इसको तो हमें जो काम है इसको आता ही नहीं है. सो अंडरस्टैंड, choose your courses that you will do right now depending on what college you are going to. If you're going to JB, then it makes sense that you guys study automation related stuff and research related stuff. Because जो JB में jobs आती है वो होती है investment banking,
a lot of data analysis related part if you want to go into marketing and everything. And in finance, along with investment banking, there is also corporate finance roles that comes in. So for JB people, I suggest that you study a little bit of Python. I suggest that you can do a CFA. CFA में level 1 level 2 बहुत हो गया, level 1 भी in the start बहुत हो गया. If you are already at level 1 तो level 2 कर लो, you will have a great advantage. And I suggest that you guys can do an FRM. These are 3 that I would recommend you. Now I'll tell you why ये कॉलेज, मैं सिर्फ इन कॉलेजेस में बोल रहा हूँ, जेबी में बोल रहा हूँ, इन कॉलेजेस में नहीं बोल रहा, बिकॉज ये कॉलेजेस में आईबी रिलेटेड रूल्स नहीं आते. सो दैट मीन्स लाइक प्रॉपर आईबी जहाँ पे तुम्हें रिसर्च करके तुम्हारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो पूरा संभालना है, तो वो यहाँ पे नहीं आना. सो दैट इज व्हाट डजंट मेक सेंस. तुम सीएफए कर भी लोगे, उसकी वहां पे वैल्यू नहीं होगी. सीएफए बहुत महंगा कोर्स है, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं हुई तो तुम कुछ फायदा नहीं कर रहे हो, तुम उल्टा नुकसान कर रहे हो. For these colleges, I suggest that you study advanced Excel and you work on your com skills. बिकॉज यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं जो तुम्हें करने पड़ेंगे. सो क्लाइंट फेसिंग रोल्स के लिए योर कॉम स्किल्स एंड एडवांस एक्सेल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड फाइनली ऑल अदर कॉलेजेस, आई सजेस्ट तुम एक्सेल, you do a very very well thought and well designed course on PPT design. मार्केटिंग वाले तुम लोग कर लो डिजिटल मार्केटिंग. फाइनेंस वाले आई सजेस्ट यू फिनिश दिस कोर्स कॉल्ड फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स. फॉर नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स, दिस इज वन, दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट यू टू डू. इससे तुम्हें फायदा होगा बिकॉज तुम्हारे प्लेसमेंट के टाइम ये सारे तुम्हें याद आएंगे, ये सारे तुम्हें काम आएंगे बिकॉज इनकी वैल्यू होगी वहां पे. देखो, जहां पे कोई चीज की वैल्यू नहीं है वहां पे वो नहीं करना चाहिए, और जहां पे जो चीज की वैल्यू है वो चीज करनी चाहिए. अकॉर्डिंगली सिलेक्ट. चलो, नाउ 3 बेस्ड ऑन ओनली योर सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, ये 3 क्वेश्चन है. कास्ट सर्टिफिकेट है बट वैलिडिटी नहीं है, नहीं चलेगा. यू विल नीड अ कास्ट सर्टिफिकेट एंड अ वैलिडिटी सर्टिफिकेट. अगर तुम्हारे पास कास्ट और वैलिडिटी दोनों है बट क्रीमी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं चलेगा. ऑल द बैकवर्ड क्लासेस को जो भी मिलते हैं, दे आर बिकॉज यू कम फ्रॉम अ इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड ऑल्सो. सो दैट इज वाई यू नीड ऑल ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स. फोर्थ, अगर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हुआ है, प्रॉपर डिग्री हाथ में नहीं आया, चलेगा. अंडरस्टैंड, ये तीनों केसेस में यू विल नीड टू गिव द कॉलेज अ रिटन गारंटी. ये दोनों केसेस में थोड़ा अर्जेंसी कॉलेज रखेगी बिकॉज तुम्हें कॉलेज उस बेसिस पे एडमिशन कम फीस में या फिर कम परसेंटाइल पे दे रहा है. सो दे विल बी वेरी वेरी इनल अबाउट इट. तुम्हें 15 दिन जितना अलाउंस मिलेगा, 15 दिन में कैसे भी करके वो सर्टिफिकेट लेके आओ. एंड बाकी जो फोर्थ है कि तुम्हारा कॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है या फिर तुम्हारा कॉलेज का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिसिंग है, उसके लिए तुम्हें ज्यादा टाइम मिलता है. यू कैन गिव एन अंडर राइटिंग दैट कॉलेज को टाइम लगेगा तो मुझे 1 महीना जितना टाइम चाहिए, 1 महीना 2 महीना. मैंने पर्सनली मेरा 12th का पासिंग सर्टिफिकेट दिया था अप्रोक्सीमेटली 48 डेज के बाद. सो इट इज फाइन. बट जो लोग का, ऑन द अदर हैंड, देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसका ही वाज फ्रॉम द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी. उसको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं था, इसकी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया. So now understand, it is very very important. It was clearly obvious that he was a person with disability, but on paper उसके पास नहीं था. So that is why उसका एडमिशन कैंसिल हुआ. I don't want that to happen to you guys. So इसलिए ध्यान रखना that documentation बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज अभी से जुट जाओ. कैप राउंड जब होना होगा होगा, बट जब भी होगा अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी. Now this, I've completed my BCom from Mumbai University and Masters from Pune. I want to pursue from Sydenham. What will be considered home or outside home university? तुमने अगर ग्रेजुएशन यहाँ किया, मास्टर्स किधर बाहर से किया, इट इज फाइन, यू आर स्टिल अ होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. तुम्हारा डोमिसाइल एंड तुम्हारा consideration of home university outside home university is based on your bachelor's degree. Why? Because this is MMS, which is after your B, like any bachelor study. Most obviously it will be after BMS, but कोई भी bachelor's के बाद तुम कर सकते हो. It's a master's, right?
तो मास्टर्स में वो लोग बैचलर्स का तुम्हारा देखेंगे दैट तुम होम यूनिवर्सिटी हो या आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी हो. सो दैट इज वाई इन दिस केस यू आर अ होम यूनिवर्सिटी. एंड सिक्स, अ स्टूडेंट जिसने स्कूलिंग महाराष्ट्र से किया बट ट्वेल्थ बाहर से किया, फैमिली महाराष्ट्र में रह रही है, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू बी कंसिडर महाराष्ट्र कैंडिडेट? नाउ अंडरस्टैंड, यू विल नीड टू गिव सम काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन दैट सेज दैट तुम महाराष्ट्र में रह रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम. सो तुम्हारा कुछ तो या तो ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, ये देर आर टू मेनी केसेस विच यू कैन मेक अप. फॉर दिस आई सजेस्ट दैट यू गो टू योर रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे इधर गवर्नमेंट ऑफिस नजदीक है, मैंने उधर जाके बात की थी, मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ गया था. देर इज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फीस 50 रुपीज मुझे मांगा था. सो तुम्हारे वहां पे डिपेंडिंग ऑन द ऑफिस दे माइट आस्क यू मनी. पे ओनली द ऑफिशियल चार्ज, को एक्स्ट्रा चार्ज पे मत करना. आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र. ओके, तो वो भी मैं बना के दूंगा, दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एवरीथिंग. सो या, बाद में आगे. What if I don't want to take admission in college which was allotted to me in cap round 1? There are two options. Either you can float or you can accept. Float का मतलब फर्स्ट राउंड में समझो अगर मुझे पुम्बा मिला, आई कैन फ्लोट, मुझे सेकेंड राउंड में शायद वेलिंगकर मिल जाए. नाउ अंडरस्टैंड. बट अगर वेलिंगकर नहीं मिला तो मेरा पुम्बा का सीट जाता नहीं है, बिकॉज आई हैव फ्लोटेड उधर. कैसा मतलब, रुमाल रख दिया, दैट इज फ्लोटिंग. रुमाल रख दिया, कोई तुम्हारी सीट लेके नहीं जा सकता. बट अगर सेकेंड राउंड कैप राउंड 2 आ गया और तभी भी तुम फ्लोट कर रहे हो, तभी भी होगा. बट वंस द ऑल द कैप राउंड्स आर ओवर, तुम्हारी सीट खत्म, एंड बाद में होता है फाइनल फाइनल राउंड, जिसमें मतलब सारे कैप राउंड्स खत्म होने के बाद और एक राउंड होता है जिसमें ये सारी सीट्स जिन्होंने फ्लोट किया बट एडमिशन नहीं लिया, वो सीट्स खाली होती जाती है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. तो वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स वो होती है जो लोगों ने एडमिशन नहीं लिया बट उन्होंने बुक किया था. पैसा नहीं भरना होता है फ्लोट करने के लिए, बट यू हैव टू एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग देम दैट यू आर फ्लोटिंग. So this is one, and I'm not going to get admission in JB this year, so I'm going to take admission in different college. Will I be allowed to participate in cap round next year? हर साल cap round it's as good as new. तुम्हारे ये साल के रिजल्ट पे नहीं, नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट पे तुम कैप राउंड में कर सकते हो. बट इसमें एक कैच है, मैं आगे बताता हूँ. देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम. चलो, if I take admission after the first round and don't go for a second round, and at the counseling round I get to know that vacant seats at JB and Sydenham, will I be eligible for those seats in counseling round? Now understand this question and उसके बाद वाला question देखो. I am already doing MBA from not a great college, but my college is not allowing me to take out documents. They say I will be charged with penalty. What do I do? All these colleges, guys, समझो, colleges जो थोड़ी tier 2 tier 3 टाइप कॉलेजेस है, लेट्स बी ऑनेस्ट, दे आर देयर टू मेक मनी. अगर तुम वहां से निकल जाओगे, तुम्हारी सीट खाली हो जाएगी, कोई तुम्हारी सेकेंड ईयर की फीस नहीं भरेगा. ऐसा नहीं कि उनको पैसा मिलता है, दे विल नॉट लेट यू गो बिकॉज उनको भी वो पैसा चाहिए. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई नो पर्सनली अ स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा परेशान हुआ. ही स्कोर्ड अ वेरी गुड परसेंटाइल. उसने लास्ट ईयर लिया था एक यूनिवर्सिटी में, सॉरी एक कॉलेज में विच इज इन पुणे. आई वोंट नेम द कॉलेज, इट्स अ वेरी वेरी सोसो कॉलेज. बट उसे वहां से उसके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं दे रहे थे, ऑल्दो ही स्कोर्ड अ वेरी गुड परसेंटाइल दिस ईयर. उसको ये साल आराम से ही कुड हैव गॉटन सीओईपी और पुम्बा, बट वो नहीं ले सकता बिकॉज उसको डॉक्यूमेंट्स उसको कॉलेज वापस रिटर्न नहीं कर रही. बिकॉज ऑब्वियसली अगर उसने छोड़ दिया तो सेकंड ईयर की फीस कौन भरेगा? The reasoning that these people give will be crazy, and I don't want you to get stuck in it. And that is why I always tell you, please ये थर्ड ईयर कॉलेजेस मत लेना. कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान बहुत है. अगर तुम अगले साल पढ़ाई करके परसेंटाइल लेके भी आओगे, तुम्हारा एडमिशन वहां पे कैंसिल करना बहुत ज्यादा त्रास हो जाएगा. आई सजेस्ट यू नॉट डू इट. मैं बोल बोल के थक गया, बट प्लीज स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम टेलिंग दिस. ओके, एंड यहाँ पे इफ एट ऑल यू डू टेक एन एडमिशन इन अनदर कॉलेज, तुम्हारी सीट कंफर्म हो जाती है, मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन आईडी के साथ तुम्हारी सीट कंफर्म होती है, अनलेस योर कॉलेज अलाउज यू टू कैंसिल दिस सीट. जो बहुत कम कॉलेजेस इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है. बिकॉज समझो अगर सिडनम में तुमने एडमिशन कैंसिल किया एंड तुम्हें लग रहा है कि अरे मुझे जेबी मिल जा रहा है बिकॉज सीट्स है वहां पे वेकेंट, सिडनम विल अंडरस्टैंड बिकॉज वो कॉलेज बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज सिडनम इज नॉट आफ्टर मनी. बट देर आर मेनी कॉलेजेस जो सिर्फ पैसे के लिए काम करती है. सो दे विल नॉट अलाउ यू बिकॉज उनके दिमाग में अरे मेरा पैसा चला जाएगा. बिकॉज सिडनम को पता है तुम जाओगे तो कोई ना कोई और सिडनम में आ जाएगा, बट वो कॉलेज को पता है तुम गए तो बाकी कोई तुम्हारी जगह लेने नहीं आएगा.
That is the difference between these colleges, and that is why I suggest go only to the good colleges. ये मत जाओ third tier colleges में. So these are a top 10 questions that I have received for cap rounds and all the admission process related. इसके आगे जो भी तुम्हारे डाउट्स है, please ask them the questions. मैं अगले 3 दिन के लिए सारे questions answer कर दूंगा. And I'll see you in the session on 8th October. I again want you guys to just look at the QR code, register on it, and please make sure that you come for the session. Okay? Bye everyone. Lots of love, and I just hope to see you there.